جھوٹ کا تو مار کرتاسی عبید کے مرتبین واضح طور پر کسی دوسرے محرک کے زیر اثر نظر آتے ہیں جو کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزام کے علاوہ اس کا ثبوت مندرجہ ذیل اموار سے ملتا ہے۔ کرتاسی عبید میں میرے سینئر وکیل صفائی اور سابق اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر ایک پورا اور جداگانہ باب موجود ہے۔ یہ نواں باب ہے جس کا عنوان ہے یحییٰ بختیار کا کیس، جو صفحہ 341 سے شروع اور 381 پہ ختم ہوتا ہے۔ وزراء کی ایک بڑی فوج جو وفاقی اور صوبائی وزراء پر مشتمل ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام ارکان اور سینٹ جو لگ بھگ 1000 افراد بنتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اس فرد کے لیے خصوصی طور پر 40 صفحات پر مشتمل ایک باب وقف کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ میں میرے مقدمے میں میرا پرنسپل ڈیفنس کونسل ہے۔ اگر یہ واقعات کے لمبے بازو کا پھیلاؤ نہیں ہے تو پھر یہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس دستاویز میں بڑی غیر شائستگی سے کردار کشی کی کوششیں کی گئیں جن کا معمولی سا تعلق بھی انتخابات اور ان میں ہونے والی دھاندلیوں سے نہیں ہے۔ یہ عناصر دانستہ اس دستاویز میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ اس غیر متنازع اور عالمی سطح پر شہرت یافتہ میرے مقدمے نفرت و عناد کی مہم کا حصہ ہے۔ اس کی ایک مثال صفحہ 79 اور 80 پر ملتی ہے جس میں میرے مشیروں میں سے ایک مشیر کے بیٹے کی تقرری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تقرری کا کوئی بھی تعلق انتخابات سے نہیں ہے۔ کرتاسی عبید کے صفحہ 25 پر مرقوم ہے، ایک ریکارڈ کی ہوئی ٹی وی تقریر میں اس نے اللہ کی قسم کھا کر بھی یہ کہا کہ اس کا انتخابات کی بے قاعدگیوں میں کوئی ہاتھ نہیں، حالانکہ اس کے نتیجے میں 4 ماہ تک قومی سطح پر احتجاج کیا گیا، خاصی انسانی جانوں اور املاک کا نقصان ہوا اور مارشل لا نافذ کیا گیا۔ دھاندلیوں کے لیے تیار کردہ ماسٹر بلو پرنٹ کا اوریجنل مسودہ دریافت کیا گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے خدا کی جھوٹی قسم کھائی، خدا کے نام کے تقدس کو سیاست کی پالیسی پر قربان کر دیا۔ میں اب بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، میں نے انتخابات میں دھاندلی نہیں کروائی، میں ان افراد کا ذمہ دار نہیں ہوں جنہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں انتخابات میں بدعنوانیاں کی۔ الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونلز اور انتخابات کے قوانین جن میں عدالت عدلیہ کے دائرہ اختیار میں شامل ریٹ درخواستیں شامل ہیں، ایسے تمام مقدمات میں اس کے جواب کے دائرہ اختیار میں شامل ریٹ درخواستیں شامل ہیں، ایسے تمام مقدمات اس کا جواب تلافی اور انصاف فراہم کرتی ہیں۔ یہ پوزیشن پاکستان میں طے شدہ ہے اور بر صغیر اور دوسرے تمام ممالک جہاں جمہوری انتخابات کرائے جاتے ہیں وہاں یہی عمل رائج ہے۔ میں نے تو الیکشن کمیشن کو غیر معمولی اختیارات دیے تاکہ وہ افراد کو ڈسکوالیفائڈ کر سکے۔ میں نے قانون میں شک رکھوائی کہ الیکشن پٹیشن کو 6 ماہ کے اندر لازمی طور پر مٹا دیا جائے۔ کرتاسی عبید کے صفحہ نمبر 659 پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جملہ شکایات کی تعداد 57 تھی۔ یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ شکست خوردہ امیدوار ایسے کھلے مواقع جیسے سرسری ڈسکوالیفیکیشن سے کتنا غیر ضروری فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے قطع نظر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ شکایت یا درخواست جائز تھی۔ ان میں بیشتر درخواستوں کو کوئی بھی مجاز ٹریبیونلز مسترد کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ خصوصی اختیارات اس لیے واپس لے لیے کہ بے معنی، مبالغہ آمیز اور فرضی شکایتیں درج کرائی جا رہی تھیں۔ الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیے گئے تھے انہیں ہائی کورٹ میں اس بنا پر چیلنج کر دیا گیا کہ یہ اختیارات آئینی شقوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی انتخابات کا سوال ایک ایسے ٹریبیونل کے سامنے ہی الیکشن پٹیشن سے اٹھایا جا سکتا ہے جو آئین کے تحت قائم کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشن نے ایک شکایت تو پی این اے کے امیدواروں کے خلاف پی 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 کے امیدواروں نے پیش کی تھی، قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس سے بھی اہم نکتہ یہ ہے کہ پی این اس فیاضانہ دعوت کے باوجود مذاکرات پر باہمی تبادلے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مزید برآں، الیکشن کمیشن کو دیے جانے والے خصوصی اختیارات کو واپس لینے کی ایک اضافی وجہ یہ بھی تھی کہ انتخابات کے بعد ان اختیارات سے شکی افراد نے عدالت مآب عالیہ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی تھی جن میں ان غیر معمولی سماعت کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس صورتحال کی وضاحت وفاقی وزیر قانون ایس ایم مسعود نے قومی اسمبلی میں کی تھی۔ الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کی واپسی کا ذکر کرتے ہوئے دوسری چیزوں کے علاوہ وفاقی وزیر قانون نے کہا تھا، سر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں
ये एक एक तरफा प्रोसीजर था जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने हो रहा था। इसमें दूसरे फ्रीक को नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी। हालांकि रीट्रेन उम्मीदवार को भी ये मौका फराहम नहीं किया गया ताकि वो अपना नुक्ता नज़र अपने केस में पेश करे और इस काबिल हो सके कि जो बाकायदगियां हुई हैं वो उनसे नहीं की थी। करताज़े अब्बैस के सफ़ा 56 पर मेरी तकरीर का हवाला और तबसरा 3 वजूहात की बिना पर दिया गया है। जनरल ज़िया हक ने आज तक अवाम से जितने वादे किए वो एक एक करके सब तोड़ दिए। हालांकि ये वादे उसने कुरान पाक की आयत की तिलावत करके किए गए। इसके दौरान अवाम में जो शदीद रद्द अमल पैदा हुआ, इसे कम करने और दबाने के लिए मेरा हवाला दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के जवाब में कि मैं एक बराए नाम मुसलमान हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचा मैंने पाकिस्तान की अवाम के साथ आज तक जो वादा किया है उसकी वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जो तकरीर 29 जून 1958 को की, इसके बाद ये बिल्कुल फरामोश कर दिया कि इसने भी कोई वादा किया था। करताज़े अब्बैस में मेरे खिलाफ कई बेबुनियाद बहतान इलेक्शन कमीशन के अहमदी सेक्रेटरी मिस्टर AZ फारूकी ने लगाए हैं ताकि पढ़ने वालों के जहनों में मेरे खिलाफ तासुब और अनाद पैदा किया जाए। इस सिलसिले में मैं एक पुरफरे बहतान की मिसाल करताज़े अब्बैस के सफ़ा 150 पर देखी जा सकती है, जिसमें ये कहा गया है कि इस जमाने के चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसे मेरे साथ होने वाली टेलीफोन पर बातचीत से आगाह किया, जिसमें मैंने इलेक्शन कमीशन की तशरीह मुहिम के मुहर्रकात और असबाब अपने गुस्से और नापसंदीदगी का इजहार किया था। ये पैराग्राफ यूं है। एक और वाकया जो मुझे याद आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन की पब्लिसिटी से ताल्लुक रखता है, जो इलेक्शन कमीशन आज़ादाना कर रहा था और अवाम को तहरीक दे रहा था कि वो अपने वोट सही तरीके से कास्ट करें। लगभग फरवरी के वस्त में मिस्टर सज्जाद अहमद जान ने मुझे मतला किया कि वजीर आजम को हमारी ये आज़ादाना मुहिम नापसंद है। मिस्टर जान ने कहा कि वो अपने तशरीही प्रोग्राम को मतला करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसका लहजा नरम कर दिया जाए। इस सिलसिले में जो कार्रवाई की गई इसका मुलाहाजा कमीशन की नोटिंग से किया जा सकता है। बहरहाल इस नरम मिजाज की पब्लिसिटी से भी मिस्टर भुट्टो खफा हो। 26 फरवरी 1977 को मिस्टर सज्जाद अहमद जान ने मुझे लाहौर से फोन किया कि तमाम पब्लिसिटी रोक दी जाए। इस रोज 26 फरवरी को मुझे मेरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भी मता किया कि इसे मिस्टर सज्जाद अहमद ने लाहौर से टेलीफोन पर भी हदायत सादर की है। टेलीफोन पर अपनी गुफ्तगू में मिस्टर जान ने मुझे बताया कि वजीर आजम मुतअद्दिद बार टेलीफोन पर हमारी पब्लिसिटी के बारे में शिकायत कर चुके हैं। हर लम्हा वो उनसे खफगी और नाराजगी से बात करते और कहते हैं, क्या आप अपनी पब्लिसिटी से हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? तुम मुसलसल कायदाना और अल्लामा इकबाल के हवाले दे रहे हो। ये एक सफेद बेबुनियाद और इंतहाई घटिया खुदतराश झूठ है। दरअसल ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के जहनों में मेरे लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जरा अंदाजा कीजिए, मैंने ऐसे रिमार्क चीफ इलेक्शन कमीशन को कहे और आम टेलीफोन पर ऐसे वक्त में दिए थे जब इंतखाबात की मुहिम अपने रूज पर थी, और इसके रद्द अमल में वो भी ये गुफ्तगू खुले और आम टेलीफोन पर अपने सेक्रेटरी को बता रहे हैं। मिस्टर सज्जाद अहमद जान जिंदा हैं और पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। अगर मैंने ऐसे ही घिनौने सियासी रिमार्क्स खुले टेलीफोन पर दिए थे तो हुकूमत ने इसे क्यों तलब ना किया, और फिर सियासत के किस असूल के तहत कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के हवाले पर मुश्तमिल पब्लिसिटी हमें तबाह बर्बाद कर सकती थी? क्या उसको जितना मर्जी फैला कर देखें, हमें इससे क्या नुकसान पहुंच सकता था? मुबलगा आराई और झूठ की इंतहा कर दी गई है। ये किसी किस्म की घटिया बहतान की आखिरी और इंतहाई मिसाल है। मेरी हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि इसने पूरे वकार और शायाने शान अंदाज से कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के सदर साला यौम पैदाइश का एहतमाम किया। पाकिस्तान का एक मुंतखब और अवाम में मकबूल रहनुमा हमेशा हमारे मुल्क के बानियों और जमा का भरपूर एहतराम करेगा। सिर्फ हुकूमत के तख्ता उलटने वाले कासिब और गैर मुल्कों के एजेंट ही इन अजीम सियासी रहनुमाओं की मकबूलियत से हसद कर सकते। मजीद बड़ा करताज़े अब्बैस के सफ़ा 656 पर यह बात दर्ज है कि मेरे जैसे तजर्बे वाले शख्स ऐसी गैर जिम्मेदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं कर सकता।
यूं लिखा गया है, मिस्टर भुट्टो ने तमाम कानूनी गैर कानूनी सिफारिशात जो इस नोट में पेश की गई थी रजामंदी का इजहार करके मिस्टर रफ़ी रज़ा को इन रिमार्क्स के साथ भिजवा दें। ये बहुत ज़रूरी और अहम है। आप तमाम मुतलका अफराद से रब्ता कायम करें और एक वाज़िया हदायत खुफिया टेलीफोन पर दें। ये हवाला वाज़िया तौर पर जाहिर करता है कि अगर मैं अपने वज़रा को ये मशवरा देता हूँ कि वो टेलीफोन के बारे में मुहतात रहें, खुद इसके बरक्स खुद अमल नहीं कर सकता। मैंने इस दुनिया में सब कुछ देखा है। आम टेलीफोन पर खुदकुशी करने वाले अल्फाज कहे जाते हैं। मुझे ये बताने और याद दिलाने की कतई ज़रूरत नहीं कि आम खुले टेलीफोन पर बात करना ऐसे ही है जैसे अवामी जलसे से खिताब कर रहा। लाहौर में मुकदमा कत्ल हो या ये करतासी अबैस, टेलीफोन ने मेरे लिए मौत के फरिश्ते का किरदार अंजाम दिया है। इस्तगासा ने मेरे खिलाफ जो बुनियादी और काबिल एतमाद गवाह पेश किया है वो यही टेलीफोन है। अगर कोई जाली दस्तावेज पेश नहीं की जा सकी, अगर कोई अपने मतलब का गवाह नहीं मिल सका कि जो सरासर झूठ बोल सके, तो फिर ये तरकीब इख्तियार कर ली गई। इसने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि मैं एटम बम गिरा दूंगा। मैंने जो रिमार्क्स मिस्टर रफ़ी रज़ा को खुशमजाजी से मौलवी पर दिया था इससे कोई मलाही शख्स तौर पर मुश्तल हो सकता है। करतासी अबैस के सफ़ा 114 पर यूं बयान किया गया है, मिस्टर रफ़ी ने इसे इन रिमार्क्स के साथ मिस्टर रफ़ी रज़ा को भिजवा दिया। ये हमारे एक भलाई चाहने वाले की कोशिश है। हम इस पर किसी दूसरे मसले का कहाँ तक इन्हिसार कर सकते हैं। लेकिन इसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी इस राय पर फौरी नजरसानी करते हुए मिस्टर रफ़ी रज़ा के नाम नोट में तरमीम करके यूं इजाफा किया, मैंने मतन में पढ़ा है, ये किसी मुल्ला का लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने लफ्ज मुल्ला के नीचे 2 बार लकीरें खींची, जैसा कि ज़मीमा 117 में है। ये शायद मिस्टर अकराम आज़म की इन कोशिशों का खात्मा था जो हुक्मरान जमात को राह रास्त पर लाना चाहती थी। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, करतासी अबैस 252 ऐसी दस्तावेज पर मुश्तमिल है जो हुकूमत के रिकॉर्ड और फाइलों से यकतरफा तस्वीर को पेश करने के लिए चुनी गई है। सरीहन इस इदारे के साथ पेश की गई हैं कि ये दस्तावेज मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात साबित करें और इनको गलत और बातिल अंदाज में पेश किया गया। मुझे मतौन करने के लिए इन खुसूसी दस्तावेज का इंतखाब किया गया, लेकिन ये इंतहाई गैर इखलाकी कोशिश बेकार गई क्योंकि ये दस्तावेज एक दूसरे के तसादात को पेश करती हैं। ये दस्तावेज तकाजात करती हैं कि इन्हें दूसरी दस्तावेज के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। इसके बावजूद ये दस्तावेज आया करती हैं कि लहजे को दबाया, कुचला और तबाह किया गया है। इसकी एक मिसाल यूं है कि मैंने तमाम मुतलका महकमों को ऐसे डायरेक्टिव जारी किए जिनमें हदायत दी गई थी कि इंतखाबात में मुकम्मल गैर जानिबदारी को मलहूज रखा जाए। मैंने ये इंतबाह भी किया था कि बदउनवानी को किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इन दस्तावेज में से एक दस्तावेज भी यहाँ पेश नहीं की गई। वो तमाम दस्तावेज जो मेरी हुकूमत के हक में जाती हैं, इन्हें जला दिया गया। इन ज़मीमों के जरिए जो गुमराह कुन तशरीह पेश की गई है, इसे आसानी से समझना किसी भी कारी के बस में नहीं है। करतासी अबैस के मज़ामीन ने अपनी मनमानी तशरीह और ताबीर की है जो इन दस्तावेज से मुताबिकत नहीं रखती। जो खुलासा बनता है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पढ़ने वालों के दिलों में मेरे लिए अनाथ पैदा किया जाए। जैसा कि करतासी अबैस में दावा किया गया है कि ये दस्तावेज खुद बोलती हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिर इन मुंतखब दस्तावेज की गुमराह कनी, झूठी और बेबुनियाद तशरीह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही मसख शुदा खुलासा पेश करने की ज़रूरत महसूस होती। अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो सिर्फ इतनी कि इन दस्तावेज को ही पूरे तौर पर पढ़ लिया जाए, लेकिन ऐसा दानिस्ता नहीं किया गया। ये दोहरी मुशक्कत इसलिए की गई कि इन माजूर और नामुकम्मल ज़मीमों पर नकाब डाला जा सके। कानून की ज़बान में इसे यूं कहा जाएगा कि नीली पेंसिल का इस्तेमाल किया गया और इंसाफ की ज़बान में यूं कहा जाएगा कि गैर कानूनी मशकूक हरकत की गई।